अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقال الله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والغارمين وفي سبيل الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من تمام إسلامكم أن تؤدوا زكاة أموالكم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، سن ہجری 1443 اسلامی سال کا اللہ کا مہینہ رمضان المبارک آج اس کی دوسری جمعہ ہے. رمضان المبارک میں پیش آنے والے عمل سے جن کا سابقہ پڑتا ہے وہ 8 سے 10 مسائل ہیں. رمضان المبارک کا آغاز چاند دیکھنے سے ہوتا ہے. چاند ثابت ہو جانے کے بعد تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے. صبح سے روزہ رکھا جاتا ہے. تیسری چیز. چوتھی چیز، رمضان المبارک میں اعمال کا ثواب اللہ کے یہاں بڑھ جاتا ہے. ایک نفل کام فرض کے برابر ہوتا ہے. ایک فریضے کی ادائیگی 70 فریضے کی ادائیگی کا ثواب دیتی ہے. اس وجہ سے ہم اپنی مالی خیرات، زکوٰۃ، صدقہ، للہ، عطیہ وغیرہ وغیرہ رمضان المبارک میں دیتے ہیں. تو زکوٰۃ کے فضائل، مسائل اور احکام. اس کے بعد اعتکاف، لیلۃ القدر، شب عید، عید کے دن کے احکام انشاءاللہ آئندہ جمعوں سے ذکر کیے جائیں گے. زکوٰۃ کسے کہتے ہیں لغتاً؟ زکوٰۃ کا ترجمہ صفائی، ستھرائی، نما اور بڑھوتری. 2 ترجمے لغت میں کیے ہیں. صفائی ستھرائی ایک ہے. مال میں ایک قسم کا میل ہوتا ہے. جب اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے تو مال سے وہ میل دور ہو جاتا ہے. جب میل دور ہو گیا، یہ مال صاف ہو گیا، یہ مال ستھرا ہو گیا. زکوٰۃ کا دوسرا ترجمہ لغت میں نمو اور بڑھوتری کے ہیں. مال کا جب واجبی حق ادا نہیں کیا جاتا ہے وہ مال برکت سے خالی رہتا ہے، وہ مال بڑھنے سے خالی ہو جاتا ہے. اور جب مال کا واجبی حق ادا کر دیا جاتا ہے اب اس مال میں
कुदरती तौर पर बढ़ने की और बरकत की सलाहियत पैदा हो जाती है। तो लुगतन दो तर्जमे हुए, सफाई और सुथराई। दूसरा तर्जमा बरकत और इजाफा, बढ़ोतरी के तर्जमे में हुआ। शरीयत की बोलचाल में निसाबे मुअय्यन पर मुकर्ररा मुद्दत गुजर जाए, माल का एक मुतअय्यना हिस्सा मुस्तहिक के ज़कात का अल्लाह की खुशनुदी के लिए अपनी मिल्कियत में से निकालकर मुस्तहिक के ज़कात शख्स को दे देना, इसको शरीयत की बोलचाल में ज़कात कहते हैं। निसाबे मुअय्यन पर मुकर्ररा मुद्दत गुजर जाने पर माल का एक मुतअय्यना हिस्सा मुस्तहिक के ज़कात शख्स को अल्लाह की खुशनुदी के लिए दे देना, इसको शरीयत की बोलचाल में ज़कात कहते हैं। निसाबे मुअय्यन क्या हुआ? सिर्फ सोना है तो 7.5 तोला सोना, सिर्फ चांदी है तो 52.5 तोला चांदी, व्यापार का माल है 52.5 तोला चांदी की मिकदार, रोकड़ रकम है, बाजार से 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं, इतना पैसा, ये निसाब है। जानवरों का सिलसिला रहा नहीं, इस वजह से जानवरों का मसला जिक्र नहीं करते हैं। पैदावार में औसर और निस्फ़े औसर ये भी मुख्तलफ हुई है, इस वजह से सोना, चांदी, रोकड़ रकम, व्यापार का माल, इस पर साल गुजरने पर साहिबे निसाब शख्स का माल का 40वां हिस्सा अल्लाह की खुशनुदी के लिए निकाल देना, अपनी मिल्कियत से निकाल कर मुस्तहिक के ज़कात को दे देना, ये हो गया निसाबे मुअय्यन। लेकिन अगर किसी आदमी के पास थोड़ा सोना है, थोड़ा चांदी है, थोड़े से रुपये हैं, ये सबको मिलाओ और 52.5 तोला चांदी की मिकदार माल आ सकता है, तो ये आदमी शरीयत की निगाह में मालदार हो गया। उसको अपने माल का कैलकुलेट करके उसकी ज़कात निकालनी पड़ेगी। 40वां हिस्सा, 100 रुपये का 40वां भाग 2.5 रुपये है, 1000 रुपये का 40वां भाग 25 रुपये है, 1,00,000 रुपये का 40वां भाग 2,500 रुपये है। दाखिला तरीके निसाब मुअय्यन, मुतअय्यना मुद्दत, जो आदमी पहली मर्तबा मालदार हुआ उसके लिए साल का हिसाब है। अगर आदमी सालाना उसके पास न रोकड़ रकम, न तिजारत का माल, न सोना चांदी, न नकदी, तो फिर ऐसा आदमी मालदार नहीं होता है। मुतअय्यना मुद्दत साल होता है, माल का 40वां हिस्सा वाजिब होता है, और जिस आदमी के पास निसाब के मिकदार माल नहीं है उसको देने से ज़कात अदा होती है। मालदार पर 2 चीजें फर्ज है, एक अपने माल की ज़कात अदा करेगा और दूसरे नंबर में मुस्तहिक की तहकीक करेगा। अगर मुस्तहिक की तहकीक की और ज़कात अदा की, बाद में पता चला कि यह आदमी फिर भी हकदार नहीं था, तो ज़कात अदा हो गई। अफजल यह है कि वापस दे दे, लेकिन तहकीक हो गई थी इसलिए वाजिब नहीं। लेकिन एक मालदार ने कोई तहकीक नहीं की और ज़कात दे दी, और बाद में पता चला कि यह आदमी जिसको ज़कात दी है वो हकदार नहीं था, तो अब इसको दूसरी मर्तबा वापस निकालना जरूरी है, वाजिब है, और उसकी ज़कात जिम्मे में बाकी रह गई। ज़कात मालिक के निसाब पर होती है और उसकी नीयत से ज़कात अदा की जाती है। एक आदमी खैरात खूब करता है लेकिन ज़कात की नीयत नहीं करता है, तो ज़कात अदा नहीं होगी। बहुत खैरात देता है लेकिन ज़कात की नीयत नहीं करता, तो ज़कात अदा नहीं होगी। मालिक के निसाब, मालिक मुतअय्यन करना पड़ेगा। घर का वडील दे दें
इससे नहीं चलता है। किसी के 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, दाखिला तारीख है, हर एक का पर्सनल कितना है वो अपना पर्सनल हिसाब करे। बेटी का अलग होता है, बेटे का अलग होता है। जो औरत निकाह करके ससुराल में आई उसको मैके से क्या मिला, और माउतर ने बख्शिश दे दी है या शादी में पहनने दिया है। ससुराल में आया, औरत आई, अब उसके शौहर ने या उसके खुसर ने दागीने पहनने के लिए दिए हैं या आने वाली बहू को मालिक बना दिया है, ये सारी चौखवट जरूरी है। इसलिए कि मालिक पर ज़कात वाजिब होती है, और मालिक के निसाब न हो तो ज़कात वाजिब नहीं। तो मालिक बनने के असबाब क्या है? आपने हिदिया कर दिया तो ये मालिक बन गया, उसने अपने एतबार से बसाया, ये मालिक बन गया। आम मतन हमारे समाज में बहू को ससुराल में दागीने पहनने के लिए दिए जाते हैं, सगाई में आरियतन चढ़ाए जाते हैं, इसलिए जब नातरा टूटता है तो वापस ले लेते हैं। तो इस सूरत के अंदर मालिक या औरत नहीं हुई, इसलिए कि आरियत के दिए हैं। वह औरत जिसने ढाल मिली है हमारे समाज में, लड़के को पैसे मिलते हैं या लड़की की खुद की मिल्कियत है, बालिग होने के बाद उसने जितने पैसे बचपन से अब तक उसके प्रॉपर्टी में उसके पास जमा हो गए, ये लड़की मालदार बन जाती है। हमारे यहाँ खुशी के त्योहारों में बेटियों को ससुराल की तरफ से कुछ गिफ्टें मिलती है और कुछ आरियतन मिलता है। कुछ गिफ्टें मिले उसके मालिक लड़की है, जो आरियत में मिले उसके मालिक देने वाले हैं। अब ईदी देते हैं, ईदी तो ईदी देने वाले कान खोल करके सुन ले, इसकी मालिक लड़की है। अगर नातरा टूटा तो हर साल की ईदी ससुरे वाले लड़की पक्ष वाले से मांग नहीं सकते हैं, बहुत गुनाह की बात है, ये उल्टी करके चाट लेने जैसा है। हाँ, दागीने हैं, आरियतन दिए हैं, कोई मसला नहीं। वो कपड़े जो सगाई में चढ़ाते हैं वो आरियतन नहीं हो सकते, वो गिफ्ट हो सकती है, इसको वापस लेने का अधिकार नहीं है। अगर लेगा तो उल्टी करके चाटने जैसा है। अपनी भाषा में साफ समझाता हूं, वजह उसकी ये है, घरानों में इस किस्म के झगड़े बहुत हैं, और जब टूटता है तो सुई दोरा तक वसूल करने की कोशिश करता है। इसकी मानसिकता ये बनी हुई है, आरियतन दिया है वो ले ले, गिफ्ट दिया है वो कभी वापस नहीं ले सकते। हदिया लिया दिया ये अल्लाह के खुशनुदी के लिए और खानदानों में मोहब्बत बढ़ाने के लिए है, इसलिए उसको किसी भी हाल में वापस नहीं लिया जा सकता। मालिक को नियत करनी पड़ेगी। नाबालिग औलाद अगर करोड़ों के मालिक हैं तो उनकी तरफ से ज़कात नहीं है। जो ही लड़की बालिग हो गई 12वें साल में, या हैज आने पर, या बगल के बाल निकल जाने पर, या तलाम हो जाने पर, जो ही लड़का बालिग हो गया, बगल के बाल आ जाने पर, ज़ेरे नाम बाल आ जाने पर, उम्र के एतबार से 15 साल पर अब ये मालिक बन गया। उसके जितने भी पैसे हैं साल गुजरने पर उसको अपनी इस मालों की ज़कात अदा करनी पड़ेगी। हमारे समाज में जितनी ज़कात अदा होती है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े पैमाने पर ज़कात अदा होती है, ये अल्लाह का शुक्र है। लेकिन प्राथमिक भूलें हैं, वो प्राथमिक भूलें मैं बयान नहीं करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं ताकि फरीजा सही अदा हो जाए। नियत करो और कौन निसाब का मालिक ये नक्की करो और उसकी नियत करवाओ। जो निसाब का मालिक है वो अपनी नियत करे और नियत करके ज़कात अदा करे। बाज मालदार माउतर वाले लड़की को दागीना दे देते हैं, सोना दे दिया 10 तोला 5 तोला। अब ससुराल में न शोहर की हिम्मत है, ताकत है, न ससुराल की कोई ताकत है कि वो मालदार
मैके वाली लड़की की ज़कात की रकम अदा करे। अब लड़की को अपना निसाब तोड़ करके सोना बेचकर अदा करना पड़ेगा, या लड़की के माउतर लड़की के हाथ में रकम देकर इसको मालिक बनाकर लड़की से नियत करवाकर ज़कात अदा करेंगे, या लड़की की तरफ से वकील बन करके ज़कात अदा करेंगे तो ज़कात अदा होगी, बाकी ज़कात अदा नहीं होगी। ये बुनियादी भूलें थी जिसकी मैंने इस्लाह की। आइंदा ज़कात ताकीदी हुक्म 82 आयतों में सराहतन और कुरान करीम की 158 मकामात पर ज़कात का हुक्म, ज़कात अदा न करने पर वही ज़कात की अदायगी के समारात और फवाइद अल्लाह ने 118 मकामात पर जिक्र किए हैं। ज़कात अदा न करने पर नुकसान क्या होता है? इन्नल्लज़ीना यक्निज़ूना ज़हब वल फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू बिमा कुन्तुम तकनिज़ून। ये माल, इसकी तख्तियां बनाई जाएगी और जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, और मालदार की पेशानी और उसकी पीठ और उसके पहलू को दागा जाएगा। ये माल गंजे सांप की शक्ल बन जाएगा, डसेगा, कहेगा अना मालुक अना कंजुक। रिवायत में है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज में कुछ लोगों को देखा, आगे पीछे डंडियां लटक रही है और वो जहन्नम में आग, थोड़, कांटे खा रहे हैं। आका ने पूछा मन हाउलाई या जिब्रील, ये कौन लोग हैं जो अंगारे खा रहे हैं, थोड़ खा रहे हैं और कांटे खा रहे हैं? कहा ये वो लोग हैं जो अपने मालों की ज़कात अदा नहीं करते थे। अदा न करने पर सख्त तरीन वईदें हैं, अदा करने पर क्या फायदे हैं? इन्नल्लाह लम यफ़्रुज़ ज़कात इल्ला मा युतय्यब मिन अमवालिकुम। अल्लाह ने ज़कात इसलिए फर्ज की है ताकि बाकी तुम्हारे माल अल्लाह ताला पाक साफ कर दे। इन्न मिन तमाम इस्लामिकुम अन तुअद्दु ज़कात अमवालिकुम। ज़कात अदा कर देने से इंसान कामिल मुकम्मल मोमिन बन जाता है। ज़कात किनको देंगे, ज़कात किनको नहीं देंगे? ज़कात अपने उसूल को नहीं दे सकते और अपने फुरू को नहीं दे सकते। बहुत इजी मसला है। उसूल मतलब क्या हुआ? बाप को बेटा ज़कात नहीं दे सकता, बाप बेटे को ज़कात नहीं दे सकता, दादा पोते को, पोता दादे को, नाना नवासे को, नवासा नाना को, ऊपर तक आपस में एक दूसरे को ज़कात अदा नहीं कर सकते, मना है, ज़कात अदा नहीं होगी। सय्यद बनु हाशिम, अहले बेटे नबवी, 11 अज़वाजे मुताहरात और उनकी औलाद, इनको कुरान ने अहले बेट कहा है। अहले बेटे नबवी और सय्यद बनु हाशिम यानी औलाद अली, औलाद जाफर, औलाद अकील, औलाद अब्बास, इनको देने से ज़कात अदा नहीं होती। ये सय्यद बनु हाशिम है। जाफर, अली, इनकी औलाद जो है सारे सय्यद बनु हाशिम में नहीं है। जो सय्यद बनु हाशिम में है आले अली हैं, आले जाफर हैं, आले अब्बास हैं, इनकी औलाद ये सय्यद बनु हाशिम कहलाती है। इनको देने से ज़कात अदा नहीं होगी। एक मर्तबा सब्कात की खजूरें थी, हजरत हसन ने उठा ली और उठाकर मुंह में रख दी। आका ने फरमाया कख इसको फेंक दो, यह हम अहले बेट के लिए और सय्यद बनु हाशिम के लिए मुनासिब नहीं है। आका ने फरमाया ये लोगों के माल का मेल है और लोगों के माल का मेल हम सादात अहले बेट के लिए मुनासिब नहीं है, यह हराम है। इनका लेना भी हराम इन लोगों के लिए और इनका देना भी नाजायज है। न ये ले सकते हैं न उनको दिया जा सकता है।
उसुल फुरू को नहीं, सैयद बनु हाशिम को नहीं, किनको देने में फायदा ज्यादा है? हमारी ज़कात की रकम सबसे पहले हिसाब किताब करने के बाद महीना मुतय्यन, उसका दिन यानी तारीख मुतय्यन होनी चाहिए। बाज़ लोग किसी रमजान में पहली तारीख को, किसी रमजान में 10 तारीख को, किसी रमजान में 15वें रोजे को, किसी रमजान में 27वीं रात को, यह आड़गड़ हिसाब ज़कात में नहीं चलता है। मान लो अगर कोई आदमी 3 बजे उठकर जुमा पढ़ने आ जावे, आदमी 5 बजे उठकर जुमा पढ़ने आ जावे, हर एक की अकल कहती है नहीं चलेगा। चलो सुस्ती बहुत थी, देर में उठा, वुजू किए बगैर नमाज जुमा पढ़ ली, नहीं चलता है। इसमें तो आदमी एकदम सजाग है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी भूल है। पिछले रमजान में पहले रमजान को दे दी, अभी पैसे का निजाम नहीं था तो इस रमजान में 20वें रोजे को दे दी, तो 20 दिन ज़कात के चढ़ गए, और इन 20 दिन पर जो नुकसान होना था बावजूद अदायगी के हो गए। महीना, तारीख, दिन नक्की होना चाहिए। एक कैलकुलेट कर लो और अपनी डायरी में लिख लो, रमजान तो रमजान, शव्वाल में देनी है तो शव्वाल में। ज़कात का ताल्लुक रमजान से नहीं है, साल से है। अलबत्ता हम ज़कात का हिसाब रमजान में फुर्सत में होते हैं, नेकियों का भाव बढ़ जाता है, इसलिए ज़कात रमजान में देते हैं। लेकिन पहली रमजान तो हिसाब पहली रमजान को, 10 रमजान तो हिसाब 10 रमजान को। मान लो एक आदमी 10वें रोजे पर हिसाब करता है और तकाजा आ गया और एडवांस में किसी को 5000 ज़कात के दे दी, ये जायज, लेकिन कैलकुलेट करके ज़कात इसके ओवर में ही जानी चाहिए, 10 के ऊपर नहीं जानी चाहिए। यह माली हक है, इसमें एडवांस जायज है, लेकिन जिम्मे में बाकी रखकर आगे ले जाना यह मुनासिब नहीं है। तो एक दिन मुतय्यन करके ज़कात अदा की जाए। किनको देंगे? सबसे पहला हक अपने गरीब रिश्तेदार का है। गरीब रिश्तेदार में कौन आएगा? भाई है, चाचा है, चचाजाद औलाद है, खाला है, मामू है, ये जितने भी रिश्ते हैं, चचा भतीजा है, मामू भांजे हैं, खाला भांजे हैं, ये आपस के रिश्ते वो हैं कि जिनके अंदर एक दूसरे को ज़कात अदा करने में डबल सवाब है। एक रिश्तेदारी की हक की अदायगी का और एक ज़कात की अदायगी का। अपना पूरा माल अगर इनके पीछे खर्च हो गया, भाई गरीब है, हो सकता है बहन गरीब है ससुराल में, अब बाद लोग बहन के हालात तो जानते ही, ये भाई को मालूम है। अच्छा, यहां लंबी चौड़ी तहकीक भी नहीं करनी पड़ती, बहन और बहनोई के हालात मालूम होते हैं, चचा को भतीजे के भतीजे को चाचे के हालात मालूम होते हैं। इस्लाम का नुक्ता नजर समझो, लंबी तहकीक की भी जरूरत नहीं, अपने ही लोग हैं, हालात भी मालूम है, और यहां देने में रिश्तेदारी मजबूत होगी और अदायगी का सवाब भी मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, इन लेने वालों को हमेशा ज़कात खाते रहने की आदत नहीं बनानी चाहिए, यह भी मसला है। यह मुस्तहिक है, देने वाले को देना है, लेकिन इनका फरीज़ा है कि अच्छे हालात के अंदर उनको तब्दील होना है। कुछ लोगों की आदत होती है बैंक पर और सूद पर बड़े बड़े काम कर लेते हैं, बड़े बड़े कर्जे कर लेते हैं, और जब रमजान आती है तो ब्याज में फंस गया है। अब ज़कात की रकम से जिसने ब्याजू व्यवहार किया उसको मदद कर रहा है, उसको नहीं करनी चाहिए। उसमें 2 प्रकार के लोग होते हैं, जिंदगी में पहली मर्तबा बेवकूफी में आकर अंजाम से नावाकिफ होकर फंस गया और उसको इंतहाई खतरनाक सदमा और अफसोस है, तो उनके हालात की रियायत करके एकाध मर्तबा इनको सूद के कर्जे से निकाल कर मदद कर देना बेहतर है। लेकिन बाज़ लोगों की आदत होती है, लंबे लंबे कर्जे कर लेते हैं और फिर सूदी रकम भरने की है तो लोगों की पाकीज़ा ज़कात की रकमें ब्याज में चढ़ाते हैं, यह भी मुनासिब नहीं।
जिनकी आदतें इस किस्म की बन चुकी है उनको नहीं देना चाहिए, ये देना फायदा नहीं रखता है। ये मसाइल अभी समझ लो, रमजान में ये सारी चीजें पेश आती है, वक्त पर कोई मुफ्ती का कांटेक्ट नहीं होता, ये मसाइल जब मुस्तहज़र है अमल करना आसान हो जाता है। अपने गरीब रिश्तेदार को ज़कात देने में पहल करेंगे, फिर इसके बाद अपनी ज़कात डबल सवाब रखती है दीनी मदारिस के वो इदारे जो दारुल इकामा वाले हैं। इसको जरा तफसील से समझो। दीनी मदारिस में 97% आमतौर पर मुसलमानों की औलाद स्कूल में जाती है, 3% दीनी मदरसों में जाती है। 100% औलाद में से 97% इंसान की औलाद स्कूल के हवाले है और 3% मदरसों में है, और 3% गरीबों के बच्चे वो भी मदरसों में आते हैं। 3% में कुल 100% गरीबों के बच्चे इल्ला माशा अल्लाह 1% 1 या 2% 1 पॉइंट कोई मालदार का बच्चा मदरसे में आया हो, पर आमतौर पर गरीबों के। अब मदरसा 3 वक्त खिलाता है, साल के 2 जोड़ी कपड़े देता है, बीमार पड़ा तो टोटल दवाई इलाज कराता है, उसके पास इस्तेमाल के पैसे नहीं, कपड़े धोने के साबुन के पैसे भी नहीं है उसके पास, और साबुन भी उसके पास नहीं। वो तलबा भी इन आंखों से हमने देखे हैं जो किसी बच्चे के साबुन के टुकड़े जो वहां धोबी घाट में बाकी रह गए हैं, इसको चुन चुन करके मिला करके इससे अपने कपड़े धोते हैं। आप मदारिस के हालात का अंदर से जायजा लो। उम्मत की ये पसमानदा और मफलूकुल हाल औलाद इन दीनी इदारों की 4 दीवारियों में रहकर दीन हासिल करती है। मेरे 35 साल हो गए, पढ़ाने के 32 साल और पढ़ने के जमाने के 10 साल, 42 साल के ये निजाम जिंदगी है। 42 साल का निजाम जिंदगी आपकी खिदमत में पेश करते हैं। वो मदरसे जो दारुल इकामा के हैं वो ज़कात लेते हैं, उनको ज़कात दी जाती है। जो इदारे, जो मदरसे, जो मकातिब दारुल इकामा जिसमें नहीं है, बोर्डिंग हाउस नहीं है, इनमें तो बच्चे पढ़ करके दोनों टाइम माशाअल्लाह घर का खाना खाते हैं, और अगर वो बीमार पड़ते हैं तो माँ बाप अच्छे से अच्छी फैसिलिटी वाले हॉस्पिटलों में दवाई इलाज करते हैं, तो फिर इनका तो कोई मसला ही नहीं। ये तो वो तलबा जो 4 दीवारियों में रहकर कोई सालाना 1 छुट्टी मनाता है, कोई सालाना 2 छुट्टी मनाते हैं, बकरीद, रमजानी, बाकी साल का पूरा इहाता मदरसे की 4 दीवारी होती है। न उनके इखराजात घर से आते हैं, इसलिए कि घर पर अगर इखराजात होते और फरावानी होती और पॉकेट खर्च का निजाम होता तो वो भी अपने घर में रह करके मकतब में बच्चों को पढ़ाकर स्कूल कराते। लेकिन वो निजाम जब इनका उलिया के पास नहीं है तब मदरसे की 4 दीवारी के हवाले कर दिया। अभी हमारे 45 बच्चों का एग्जाम पूरा हुआ, एसएससी का और 12वीं का। 2 दिन पर ये घर गए, 2 दिन हुए। मदरसे से घर जाने का किराया भी वहां उनको पहुंचाना पड़ा, हालांकि स्कूल का एग्जाम देने आए थे, और 25 दिन मदरसे में रहे। ये एक निजाम है। हर मदरसे के हालात, हर मदरसा अपने हालात जानता है, दूसरे के मदरसे के हालात दूसरा मदरसा नहीं जानता है। तो दीनी मदारिस में डबल सवाब है। एक इशाअते इस्लाम का, इन मदरसों से मेहराब को इमाम मिलते हैं, इन मदरसों से मिंबर को खतीब मिलते हैं, इन मदरसों से इशाअते इस्लाम की अजीम तरीन खिदमत करने वाले रिजाल नसीब होते हैं। इसीलिए इस वक्त हिंदुस्तान के मुतासिब शरपसंद तंजीम और अनासिर की निगाह अगर है तो सिर्फ दावत और मदरसे पर है। हमला मरकज पर हुआ कोरोना के उन्वान से,
अभी हमले हो रहे हैं मदरसों पर और मस्जिदों पर और मुसलमानों पर। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, जितना मुस्लिम मुआशरे को समझाया जाता है इतना ऊंधा होता है। कहां कोई पोस्टें मत करो, इंस्टाग्राम के जरिए से भी मत करो, फेक आईडी से भी मत करो। आज की तारीख तक 100 नौजवानों के गलत गलत व्हाट्सएप पर पोस्टें मांगरोल पुलिस स्टेशन में महफूज हो गई। क्या करना है? इन गलत पोस्टों का मतलब क्या है? अकल तो दौड़ाओ, हिंदुस्तान के हालात तो देखो, काटे जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मसाजिद से मीनारे गिराए जा रहे हैं। ये भारत की धरती का हाल है। आज 14 हिंदुस्तान के सूबे जल रहे हैं। मांगरोल के मुसलमानों, ध्यान से काम लो। और हमारे यहां माशाअल्लाह तरावी के बाद औरतों के टोले ने टोले बंद करके दुकानों पर सौदे खरीदने जा रहे हैं। गैरत की भी तो कोई हद होनी चाहिए। अब बैतुल माल ने लिख करके इतना बड़ा पर्चा दिया, तमाम मुस्लिम समाजों ने, सुनने वाले मर्द लोग हैं, औरत तक तो आवाज जाती नहीं। इन औरतों की जिम्मेदार तो मर्द हैं। भाई सुबह से लेकर के शाम तक क्या बाजार खुले नहीं रहते? क्या हम मशरफ, हम जमात, कलमा शरीक भाइयों के पास वो सामान नहीं है जो खरीदा जाए? इसलिए मैंने अगली जुमा में कहा था, मुसलमान सच्चा अमानतदार ताजिर बने, ये भी जरूरी है। जब मुसलमान सच का अमानतदार ताजिर नहीं बनता है तो फिर हमें इधर उधर हाथ पैर पछाड़ने पड़ते हैं, या हमारे पास क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी के न होने के नतीजे में, और आज क्वालिटी के पैसे दिए जाते हैं, तो मुसलमान तुज्जार भी हमारे इन अल्फाज को दिमाग में ले। और नौजवानों से हम कहते हैं, मोबाइल यूज करने वालों से हम कहते हैं, यहां 80% वो तबका है जिनको इन मसाइल से कोई लेना देना नहीं। मेरे दिमाग में 10% वो नॉलेज वाले स्टूडेंट या वो मोबाइल चलाने वाला तबका है। ये अभी की आज की ताजा पुलिस स्टेशन की मेरी रिपोर्ट है जो मैं आपको पेश करता हूं। एक जिम्मेदार के नाते से, चूंकि आदमी जिम्मेदार फोन जिम्मेदार को करेगा, समझाया भाई एक मसला पेश आ गया। आम पब्लिक और आगे वालों से पहले पुलिस ने अपनी कार्रवाई मिनटों में कर ली, वो काबिल तारीफ है। वरना देखो इन 14 जगहों में जहां फसाद हुए वहां पुलिस ने मंफी रोल अदा किया, मुसलमानों के खिलाफ रोल अदा किया और फसाद भड़काए और कत्ल वारत गिरियां हुई। जबकि यहां इंसाफ का पहलू मद्देनजर रखकर अगर फेवर की तो इंसाफ की और अमन सलामती की। पहुंचने से पहले ही, चूंकि तोप के बाद का यह सिलसिला था और तरावी तक का मसला था, नौजवान बच्चों ने ही सुलझा दिया। पुलिस एक्शन में आई और फौरी तौर पर जो कार्रवाई करनी थी कर डाली। इसके बाद भी आगे वालों को एतमाद में लिए और कहा मोहल्ला मोहल्ला, गली गली, समाज की तरफ से और मुस्लिम इदारों की तरफ से बात समझाऊं कि गलत पोस्टें अगर ऊपर चली गई और फिर उसके जरिए से धरपकड़ के माहौल बने तो क्या हम रमजान को रात भर बेदार लेकर के बहुत इत्मीनान से हम रमजान मना रहे हैं, क्या ये रमजान मना सकेंगे? हम थोड़ा ना दूर अंदेशी से काम लेना चाहिए, अक्ल के घोड़ों को तैक करना चाहिए। हम अपनी आजादी को छीने नहीं, ये आजादी जो मिल रही है हमको। गलत पोस्टें 100 हुई और 100 गलत पोस्टों की बुनियाद पर अब महकमा तो अपना काम करेगा, इनको कागज पर बताना है। अमन आस्ती को, सुकून की फिजा को छीनना नहीं चाहिए। फितना कत्ल से खतरनाक चीज है, इससे फितना हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। गलत पोस्टें रिले करने से फितना रूनुमा होता है। अब इस्लामी सल्तनतों के हुदूद और किसास की पोस्टें नाफिज कर दी और रिले कर दी। वो तो इस्लामी सल्तनतों के मसाइल हैं,
जहां हुदूद और किसास की पोस्टें, हुदूद और किसास के मसाइल से, और वो पोस्टें यहां जो है व्हाट्सएप पर दे देने से क्या मतलब। थोड़ा संजीदगी से काम ले, और खास तौर पर मुस्लिम समाज की तरफ से और बैतुल माल और घांची समाज की तरफ से यह ऐलान है, रात के वक्त बहुत मन्नत और समाजत के साथ और बहुत ही आजीजाना दरखास्त करते हैं, मेरी माँ बहन की इज्जत आपकी माँ बहन की इज्जत है, आपकी माँ बहन की इज्जत मेरी माँ बहन की इज्जत और आबरू है। खरीदी ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है, घरों में गाबे लबड़े बहुत है, ठीक है जरूरत का बच्चों के लिए कोई सामान खरीद लिया, दिन दिन में सौदा कर लिया जायज है। मैं आपको फिका का एक कायदा बताऊं, वो औरत जिसका शौहर जवानी में मर गया, इसका कोई नहीं, माशाना समाज भी ध्यान नहीं देता, 1-2 साल फिर तो कहते हैं उसको तो आदत पड़ गई है, कोई हमेशा थोड़ा देता है। अरे घर और खानदान के अंदर भी है, जिनके यहां बच्चे भी हैं, शौहर मर गया, 1 साल 2 साल 3 साल भाई तमें तमारू करीने खाओ, ऐसा होता है। अब शरीयत इस्लाम का मिजाज है, कुर्बान जाए हमारे मजहब पर करोड़ों जाने कुर्बान है। इस्लाम ने कायदा नाफिज किया, औरत जिसका शौहर इंतकाल कर गया, बेवगी में है, इद्दत 4 महीने 10 दिन गुजार रही है, न रिश्तेदार है, न खानदान है, न मुस्लिम समाज है कि हेल्प करे, 4 महीने 10 दिन घर के कोले से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन खुद भूख मर जाएगी, औलाद भूखी मर जाएगी। ये औरत दिन दिन में हलाल रोजी कमा करके सुबह में निकल जावे और मगरिब से पहले घर आ जाए। ये इस्लाम का नुक्ता है, ये मजहब का कायदा है, ये समझाया जा रहा है। औरत रात की तारीकी में घर से बाहर निकलने के लिए नहीं है, औरत घर की इज्जत है, औरत घर की जीनत है, औरत घर की आबरू है। ये तो माशाअल्लाह फिर बुरकों के साथ और बड़ी तादाद में और देर तक शॉपिंग, बड़े मोबाइलों के साथ, ये मुनासिब नहीं है। मुल्क इस वक्त इंतहाई खतरनाक खतरे की घंटी लगा चुका है, जगह जगह जानें बर्बाद हो रही है, काटे जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, हमले पर हमले हो रहे हैं, नफरत का एक अजीब सिस्टम कायम हुआ है, और वो सब की बुनियाद व्हाट्सएप है। वहां जाकर हकीकत आप देखो तो इतना नजर नहीं आएगा। इसीलिए आजीजाना दरखास्त है, रमजान इबादत के लिए ठीक है, चलो दिन भर रोजा रखकर आराम करते हो, हम ज्यादा आपको थकाते नहीं, रात को थोड़ी देर तफरी भी कर लो, रात को बाजार से भी हम मना नहीं करते मर्दों को, ठीक है, चूंकि तबीयत बन चुकी है, हम पाबंद तो नहीं कर सकते, निकल सकते हैं, लेकिन माहौल शांतिमय बना रहे, सुकून की फिजाएं हमवार होती रहे। अरे मोहब्बत के और इस्लामी तालीमात के व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हो, अखूबत के, भाईचारे के, मोहब्बत के, अमन आस्ती के, और ले देकर हड्डियों को खुश करने की जो चीजें हैं, कितना बड़ा इस्लामी जखीरा ये मालूमात है, जिसके जरिए से ये सब्र का महीना, ये गमखारी का महीना, हम गमख्वारी की राहें मुसलमानों के साथ ही नहीं, गैर मुस्लिम समाज के साथ भी मुसावात के मिसाल कायम करके उनके कुलूब को जीत सकते हैं और इनके दिलों में हमारी जगह बना सकते हैं। ये गमखारी का महीना है, इसमें गमखारी करने से हिंदुओं की भी गमखारी हो, मुसलमानों की भी गमखारी हो, ये लेने देने का महीना है, लेने देने में ये फिजा बना है। अर्ज ये कर रहा था, अपने गरीब रिश्तेदारों के बाद दीनी मदारिस, वो जिसमें इकामती निजाम है, उनमें हमारी ज़कात की अदायगी सही हो जाती है, और वो जो दारुल इकामा की सिस्टम लगी है, सिर्फ मकतब की सिस्टम है, या बच्चे पढ़कर चले जाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा ज़कात की रकम उनमें के गरीब बच्चों की फीस में इस्तेमाल हो सकती है, वरना आम तौर पर ये ज़कात की रकम खाने पीने में, दवा इलाज मुआलजा में और कपड़ों में सर्फ होती है। फिर ये उम्मत के गरीब तलबा इन मदरसों में रहकर दीन का इल्म हासिल करते हैं, स्कूल की तालीम हासिल करते हैं, और फिर उम्मत में काम की फिजाएं बनती है। लिहाजा इनका ज्यादा हक है
इन मदरसों का भी भरपूर ताउन करते जाए। रमजान मुबारक एक हमारा निजाम हो, मेरी ज़कात दाखिला तरीके 30,000 निकलती है, 10,000 गरीब रिश्तेदारों के लिए है, 10,000 मदरसों के लिए है, 10,000 अवाम गरीबों के लिए है। ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा। 1 लाख ज़कात निकलती है तो तकरीबन 32-33 हजार मदरसों के लिए, 32-33 हजार गरीब रिश्तेदारों के लिए, 32-33 हजार आम जनता मोहल्ले के गरीब मुसलमानों के लिए, ऐसा कोई न कोई कैलकुलेट बनाए। फिर माल का वो पैसा हमारा जो लिल्लाह है, इसके जरिए से एक निजाम बनाए। हिंदू समाज में दान के तरीके नहीं है, बहुत कम। लेने के रास्ते ज्यादा है, देने के रास्ते नहीं है। क्योंकि हम हिंदू समाज का स्टडी किए हैं, इनमें लेने के बहुत तरीके हैं, देने के नहीं। तो अगर अल्लाह ने आपको दिया है, इंटरेस्ट भी आपके पास आता है, ब्याज आपके पास, वो उनके मजहब में हलाल है। सालाना एक निजाम बनाकर वर्ष में एक मर्तबा इन बिरादरान वतन हिंदू भाइयों में ऐसे भी होते हैं जिनके पास खाने के नहीं है। बहुत कम ऐसे होते हैं जो मंदिरों पर सोना चढ़ाते हो, लेकिन बहुत बड़ी तादाद उनकी वो होती है जो भूखमरे के शिकार होते हैं। लिहाजा सालाना एक तरतीब मुसलमानों की ये हो कि इंसानियत के नाते से ये भी अल्लाह के बंदे हैं, हम भी अल्लाह के बंदे हैं। कुरान हमको इबादत करना कहता है और कुरान उनको इबादिल लाना कहता है। हम हमारी निस्बत अल्लाह के साथ डायरेक्ट है, हम अल्लाह के मकबूल बंदे हैं, वो अल्लाह के गैर मकबूल बंदे हैं। लेकिन बंदे होने से वो गए नहीं है, बंदे वो भी हैं, बंदे हम भी हैं, लेकिन हम अल्लाह के मकबूल बंदे हैं, वो अल्लाह के गैर मकबूल बंदे हैं। जब बंदे वो भी हैं तो बंदगी के नाते से, अब्दियत के नाते से सालाना कोई निजाम हमारा उनकी जो है खाने पीने की जरूरियात की लाइन से या गिफ्ट की लाइन से कोई निजाम भी हमारा होना चाहिए। ये चंद जरूरी बातें ज़कात के उन्वान से इस मर्तबा मैंने बहुत ताकीदी तौर पर आप हजरात की खिदमत में पेश की है। ये माली हक है। एक खास चीजा अभी ये है, कहीं भी जाओ बेकारी, धंधे नहीं है, बिजनेस ठप पड़ चुका है। देखो, 2 चीजें आपको बताते हैं। ये हालात और ये मुल्क के अभी कटाव जलाव के हालात इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है। अब हिंदुस्तान का मुस्तकबल पक चुका है। माहिरीन उलमा का कहना यह है वो दिन अब दूर नहीं है कि बड़ी तादाद में फौज दर फौज गैर मुस्लिम अवाम इस्लाम कबूल करेंगे। और ये मक्के में हुआ था जब सुल्ह भर चुका और इंतहा को पहुंच चुका और नबी जी को हिजरत करनी पड़ी। 13 साल यहां, 6 साल वहां। हुदैबिया पर पैगंबर का खौफ था, उमरा कर रहे, 1400 सहाबा पाडागंदा परवानी निकल गए और नबी जी ने एक तरफ बयाते रिजवान दरख्त के नीचे जब उस्मान इब्न अफ्फान की शहादत की खबर आई, 13 और 6 19 साल पैगंबर ने अपना हाथ निकाला और सहाबा के हाथ पर मौत पर बयात ली कि जब तक उस्मान के खून का बदला नहीं लेंगे हम बोटी बोटी हो जाएंगे, लेकिन उस्मान के खून का बदला लेकर रहेंगे। शमीशा हुदैबिया से मक्का दूर नहीं है। जब इनका वफ्द आया सुलह के लिए, एक तरफ 1400 सहाबा से आका ने हाथ में हाथ रखकर बयात ली और उस्मान मक्के में है। पैगंबर ने एक हाथ ऊंचा किया और दूसरा हाथ निकाला, कहा यह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का हाथ है, यह उस्मान का हाथ है। और उस्मान के खून का बदला लेने पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उस्मान के भी बयात के ले रहा है। जब सामने से वफ्द आया सुलह का पैगाम लेकर, इनकी पेशानियों को देख करके नबी ने फरमा दिया कि मक्का वाले सुलह पर आमदा हो चुके हैं। कड़े कड़े 4 शराइत थे।
उमरा नहीं करना है, वापस जाना पड़ेगा। आइंदा साल आओगे 3 दिन रहना पड़ेगा। लड़ने वाला हथियार नहीं। हमारा कोई आदमी मुसलमान बनकर के मदीना आ जाए, वापस भेजना पड़ेगा। तुम्हारा कोई आदमी काफिर बनकर मदीने से आएगा, हम वापस नहीं भेजेंगे। एक तरफ उमरा नहीं करने जाने, एक तरफ आइंदा के शराइत इतने खतरनाक। पैगंबर ने फरमाया कबूल है, का लिखो हादा माकादा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मक्का के मुशरिकों ने कहा, सुहैल इब्न अम्र ने, अरे रहमान और रहीम मिटा दो, बिस्मिकल्लाहुम्मा लिखो। हम रहमान और रहीम को मानते तो भी झगड़ा काहे का था। आका ने फरमाया मिटा दो, मिटा दिया। कहा लिखो बिस्मिकल्लाहुम्मा हादा माकादा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहा हम आपको अल्लाह का रसूल मानते तो झगड़ा किसका था, इसको काटो। लिखा गया था। सहाबा अब्बाद इब्न बिश्र, दूसरे एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला तलवार लेकर खड़े हो गए, खबरदार अगर रसूलुल्लाह का जुमला काटा तो। अली से कहा मिटा दो। आका ने कहा मेरी ताकत नहीं है कि मैं मिटाऊं। आका ने जिंदगी भर लिखा नहीं, पढ़ा नहीं, लिखना नहीं सीखा था, हाथ से लिखा बिस्मिकल्लाहुम्मा हादा माकादा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब व सुहैल इब्न अम्र अला मा अस्तलाहा कुरैश मक्का। इस्लाम का मुताला करो, पता चलेगा। ये दब कर सुलह, ये दब कर सुलह हुदैबिया में हुई। सहाबा से आका ने फरमाया कि हलक करा लो, कोई तैयार नहीं। इस्लाम पर सबसे नाजुक हाल इस मौके पर आया है। वो दिन दूर नहीं था, वो घड़ी दूर नहीं थी कि साहबा हमेशा के लिए शर्फ सहाबियत से महरूम हो जाते। पैगंबर की बात न मानने से आदमी काफिर हो जाए। आका परेशान। ये वो मजनून परागंदा परवाने थे। आका थूकते थे तो इत्र की जगह मल लेते थे। आदाए वुजू से पानी जब गिरता था तो इसको अपने जिस्म से लगा लेते थे। आका के कहीं मजमे में नाक से नीट निकल गया तो इसको खुशबुओं की जगह मल लेते थे। और इसके गवाह कुफरे मक्का है, कुरैश मक्का है, वो नबी के परागंदा परवाने। कहा हलक कराओ, कोई तैयार नहीं। उम्मे सलमा ने कहा अल्लाह के नबी, ये आपसे मुखालफत तो दुश्मनी की वजह से नहीं, ये तो जोश है, जोश ईमानी। चूंकि उम्रे का आपने कहा था वापस जा रहे, तो हिम्मत नहीं है, न मानने की वजह से नहीं है। आप खुद उस्तरा लेकर के शुरू कर दो, देखो ये क्या करते हैं। पैगंबर ने उसी वक्त शुरू कर दिया। सारे सहाबा 1400 परागंदा परवाने की तरह उस्तरे घुमाने लगे। इस्लाम का एक मुकम्मल निजाम है, इसका स्टडी जरूरी है। फिर जो इस्लाम को फतह नसीब हुई, 19 साल बर्दाश्त किए। और 19 साल के बर्दाश्त के बाद इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, चारों तरफ से वफूद आए और हमेशा के लिए हिजाज दारुल इस्लाम बन गया। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि इस्लाम का परचम लाल किले से लहरेगा और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का परचम वहां लहरेगा। वो दिन दूर नहीं, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानियों के बाद इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद कुर्बानियां होती है। जोश और खरोश कोई माना नहीं रखता है। दूर अंदेशी, बसीरत, बारीक बीनी, अभी मोहब्बत का माहौल कायम करना, नफरत को मोहब्बत में बदल देना, अशांति को शांति में फेर देना और कत्ल गारतगिरी की फिदा को अमन आस्ती में बदल देने के लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, हिंदुस्तानों के मुसलमानों से हिंदुस्तान एक तकादा करता है। और जब उस तकादे पर मुसलमान आ गए तो इंशाअल्लाहुल अजीज फतह के दिन दूर नहीं है। हर चीज जब उभरती है तो वो फूटती जरूर है। खाली फूक रहा है। बच्चा जब फुलाता है, अब वो बेचारे को मालूम नहीं कि रबर की कैपेसिटी कितनी है। उस बेचारे को पता नहीं कि रबर की कैपेसिटी कितनी है। जरा जोर मारी तो आंखों के सामने कुछ गोल गोल आया, फिर अब ताकत से जोर मारेगा तो और जरा उभरेगा, फिर और ताकत से जोर मारेगा, लेकिन चौथे में वो फक हो जाता है, इसलिए कि बच्चा उस रबर की कैपेसिटी से जानता नहीं है। इस तरह इन बरादरान वतन को मालूम नहीं है कि तुम जिस जमीन की पूजा कर रहे हो और जिस सूरज को तुम नमस्कार कर रहे हो,
वो मुसलमानों के खून से सींची हुई ये जमीन है, और जब जिसके खून से सींची हुई जमीन है वो कुर्बानी मालिक कभी बेकार नहीं जाने देता, वो दिन दूर नहीं है। इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, मक्के में हूँ, वो फतह पूरी दुनिया में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आम और ताम हो जाएगी। इन दीनी मदारिस का हम एहतराम करते हैं, मदद करते हैं। आपके सामने हर साल मदरसों की कार्रवाई मदरसे के जिम्मेदार पेश करते हैं। पिछले कोरोना में भी अल्हम्दुलिल्लाह काम हुआ। इस साल 350 तलबा सिडोगर में रहकर और 150 यहाँ मांगरोल में रहकर 500 तलबा की कफालत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह 32 आलिम हुई, 17 हाफिज हुई, 38 कारी हुई। ये बहुत बड़ी तादाद है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कोरोना के हालात से सबक लेकर मदरसे में 4 हुनर शुरू किए, जिसमें से 2 कर पाए, 2 आइंदा साल, एक टेलरिंग और एक जो है कंप्यूटर। एक कंप्यूटर का साल 25 बच्चों का पूरा हुआ, सॉफ्टवेयर का आइंदा हार्डवेयर का है। 6 बच्चे टेलर हुए जो आलिम भी बन गए और आलिम बनने के साथ टेलर भी बन गए। एक निजाम है। आइंदा इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर के 2 और हुनर शुरू हो रहे हैं, ये मुसलमान कौम से चंदा लेकर। पिछले मर्तबा 34 लाख का चंदा हुआ था 2 जिले में, जूनागढ़ और गिर सोमनाथ में 34 लाख का, 34,80,000 के आसपास का। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 22-23 लाख मंगरोल के थे। अब खर्चा 90,94,000 का हुआ। आप और हम सोचेंगे बाकी के पैसे कहां से आए। ये पैसे जो आए थे वही नोटे, वही बुके उस्तादों के सामने रख दिए। ये पहला मौका था मेरे 32 साल में। मैंने कहा 2 बातें हैं, 34 लाख रसोड़ा है और 32 लाख तनख्वाह है, और है कुल 34 लाख है। एक शकल ये है कि हम अपनी तनख्वाहें कम कर दे। तुम्हारे बड़े असातिज़ा ने 3-3, 2-2 हजार तनख्वाह कम कर दी, और ये 32 लाख बनते थे। बाद में वो 32 लाख एक तरफ रख दिए, हर महीने पगार होता रहा। तो मैंने कहा चलो तनख्वाह का निजाम हो गया। अब रसोड़े के लिए 34 लाख का खर्चा है। स्टॉक में गेहूं हमारे पास थे, अगले कोरोना का स्टॉक था। कुछ 56 खांडी से 60 खांडी गेहूं होते हैं, जिसमें 1/3 गेहूं मांगरोल से आते हैं, 20 खांडी, बाकी 40 खांडी हमको खरीदने पड़ते हैं हर साल। तो पिछले कोरोना का स्टॉक था, और इस मर्तबा भी अल्हम्दुलिल्लाह गेहूं का निजाम हो गया था। असातिज़ा ने मेहनत की, पूरे स्टाफ पर कीचड़ डाल दिए, दरमियान साल मेहनत करते रहे। बहुत बड़ा खर्च खाने पीने का होता है। यहाँ दारुल इकामा के अंदर बच्चे ज्यादा हैं। पूरे साल मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 1 रुपये का जो है मदरसे के ऊपर कर्ज नहीं है। 90,94,000 कैसे खर्च हुए? 66,58,000 रुपये मदरसे का खर्च हुआ। 350 तलबा का लॉजिंग, बोर्डिंग, तनख्वाह सब मिलाकर, लाइट बिल, टेलीफोन, ट्रैवलिंग, दवा, इलाज, 1,60,000 के बच्चों की दवाई हुई। ये सब मिलाकर 66,58,000। स्कूल 4थे धोरण से 12वें धोरण तक 5,52,000। हमारे 26 मकातिब में तकरीबन 1800 लड़के पढ़ते हैं, 1800 लड़के। कुल मदरसे के मातातिब में 2600 तालीम का निजाम है, 2600 का। तो इसमें से 18,84,000 ये मकातिब की तनख्वाह हुई। मदरसे में 66,58,000 मदरसे का, 5,52,000 स्कूल का, 18,84,000 मकातिब का। 90,94,000 पर मिला क्या उम्मत को? उम्मत को 32 आलामा मिले, 17 हुफ्फाज मिले, 38 कारी मिले। एसएससी में एग्जाम 25 बच्चों ने दिया, बाकी तलबा ने 12वें में एग्जाम दिया। साइंस के 2nd ईयर में एक स्टूडेंट ने अपने मुकम्मल खर्च से आलिमियत के साथ मेडिकल कॉलेज के अंदर वो तालीम हासिल करते हुए साइंस के अंदर उसने 2रा साल पूरा किया। यह उम्मत का सरमाया। आइंदा बजट 1 करोड़ से ज्यादा का है, जो मुसलमान कौम के बाहमी ताआवुन से पूरा होगा। आप हजरात से गुजारिश है, ये हमारे मांगरोल के तकरीबन 125 से 150 लड़के खाने पीने के साथ मदरसे में रहकर के सालाना तालीम हासिल करते हैं। आपसे आजीजाना दरखास्त है,
हम हर जुमा में तमाम मदरसों के ऐलानात करते हैं, साल भर करते रहे। आप हजरात ने बड़ी तादाद में साल भर रकमें दी, आज हम श्रीनगर के लिए भी ऐलान करते हैं। आजीजाना दरखास्त है, इस साल के लिए हमको आपकी ज़कात का 1/3 दे दे। 30,000 होती है तो 10,000 दे दे, 3 लाख होती है तो 1 लाख दे दे, ताकि आइंदा पूरे साल तक एक निजाम मदरसा माकूल तरीके से चले। हम पढ़ाने के आदमी हैं, मैं खुद 5 पीरियड मदरसे में पढ़ाता हूँ। सुबह उठकर जाकर के बुखारी शरीफ, मिशकात शरीफ, कुरान का तर्जुमा, 10 बजे तक तालीम का ही निजाम हमेशा साल भर चलता है। तो इसमें हमको सहूलत हो जाती है कि सालाना जब खराजात का निजाम हो जाता है तो बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान जो है हम दे सकते हैं। इसलिए आजीजाना दरखास्त है, अल्लाह के दिए हुए सरमाया मालिया से जरूर ताउन करते जाएंगे। ज़कात लिल्लाह सदका खैरात के जरिए से सदकतुल फित्र की रकम भी जमा करा सकते हैं। एक फितरा गेहूं से 70 रुपये का है, जौ से 100 रुपये का है, खजूर से 300 रुपये का है एक फितरा सदकतुल फित्र, और किशमिश से 1000 रुपये का है। इसकी तफसीलात आइंदा आती रहेगी। फिर से मैं ऐलान दोहराता हूँ बैतुल माल और समाज, समस्त मुस्लिम समाज की तरफ से कि अपनी खवातीन को रात की खरीदारी से दुकानों से रोक लें। जरूरत पड़े हम महरम मर्द दिन में भी जाकर के खरीदी करके चले आए। फिर रमजान के बाद अपना निजाम बनाए। इन मुबारक रातों को इस तरह कोई हमारी बेहुरमती हो, बेइज्जती हो और फिर हम फसाद की नजर हो जाए, इससे बेहतर यह है इस्लाम के ढांचे में रहकर माह मुबारक के तकद्दुस को हम बरकरार रखेंगे। साल भर अल्लाह की रहमतें, मददें, बरकतें हमारे शामिल हाल रहेगी। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वाह करो मोहतरम हज़रात, जैसे ऐलानात किए गए, ध्यान और तवज्जो से अमल करके अमली जामा पहनाने की कोशिश करें। रमज़ान के एहतराम का ख्याल रखें, वक्त इबादत में गुजारें या रात को भी शांति बनाए रखें। अपने अपने मोहल्ले में रह कर के हम अपने अपने मशगलों में रह कर के दूसरे मोहल्लों से हम परहेज करें और कोई भी ऐसी पोस्टें या गलत चीज़ें जज्बात में आकर के न डालें। जो लोग बाद कसूरवार निर्दोष होकर के निकल जाते हैं और निर्दोष फिर कसूरवार बन जाते हैं। इसीलिए हिंदुस्तान के मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखकर अमन, सलामती और मोहब्बत के माहौल को बनाए रखें और ख़ास तौर पर माह मुबारक में अपनी अपनी मस्तूरात को ये बात समझा करके कह दें कि इस वक्त माहौल इतना साजगार नहीं है, लिहाजा ज़रूरी कोई खरीदी हो तो ही करें, वरना ज़रूरी खरीदी न हो तो अव्वलन तो खरीदी से परहेज करें, और ज़रूरी हो तो दिन दिन में अपने महरम मर्दों से लेकर अपने माहौल में अपने साथियों से अपनी अपनी ज़रूरियात जो है पूरी फरमा लें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन कमा यलीकु बिजलाली अज़मतिक व अज़ीम सुल्तानिक या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन व या राहिमल मसाकीन व या राहिमल मसाकीन व या राहिमल मसाकीन व या ज़ुल कुव्वतिल मतीन। इतना बड़ा मजमा तेरे दरबार में हाथ उठाए हुए हैं, ये रोजे की कैफियत है। ए मेरे परवरदिगार, ऐसा मोहब्बत भरा समा हर वक्त जिंदगी में मिलता नहीं है। आज तेरी रहमत उतर चुकी है तो देने को तैयार है। ऐ अल्लाह, पूरे मुल्क से, हमारे सूबे से और हमारे शहर से बेरोजगारी को खत्म फरमा, रिज़्क़ हलाल अता फरमा। हमारा जवान परेशान, हमारा ताजिर परेशान, हमारा काश्तकार परेशान। ऐ अल्लाह, बात जवान तो घर से निकल नहीं सकते हैं। ए मेरे परवरदिगार, एक तरफ छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, एक तरफ बूढ़े माँ बाप को देख रहे हैं, एक तरफ अपनी जवानी के बाबत कहते हैं मेरी जवानी कुछ काम की नहीं, मैं इस बुढ़ापे में और इस बचपने में और इन मस्तूरात की कोई खिदमत नहीं कर सकता हूँ। ए मेरे परवरदिगार, हमें मालूम है ये हमारे गुनाहों की नहूसत हमें सता रही है। तेरे रोजी का कोई मसला कम नहीं हुआ है, तेरे खजाने में कोई कमी नहीं है। तेरा कुरान कहता है इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ ज़ुल कुव्वतिल मतीन,
रज़्ज़ाक़ तो तू ही है ना, तेरे अलावा हम किससे मांग सकते हैं और क्यों मांगेंगे जबकि खजाना तेरे पास है। कितने लोग घरों में बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं कि हम कुछ कमाए, अल्लाह ताजिर मजदूर बन गए और मजदूरी भी नहीं मिल रही है, वो नीचे का लेवल अपना लिए। ए मेरे रब, अब तो आसाइश के दरवाजे खोल दे, ए मेरे परवरदिगार, अब तो रोजियों में फरावानी के दरवाजे खोल दे। ए मेरे रब, तू कब तक आजमाएगा? ये जालिम ताकतें तो हमको कमजोर करने की कोशिश कर ही रहे हैं। ए मेरा रब, अब उनकी शिकायत नहीं करते हैं। अल्लाह, हमारे ये बदमाशियां और गुनाह है जो जालिम हुक्मरान की हैसियत से हम पर मुसल्लत हुए हैं। तेरा घर बैतुल मुकद्दस है, तूने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली। अल्लाह, बुख्त नस्र से तूने बनु इसराइल को, जो अंबिया की औलाद थी, भेड़ बकरों की तरह ज़बा करवा दिया। 1,70,000 गाड़ियों में सुलेमान का सोना बैतुल मुकद्दस से बुख्त मकसर लूट गया। ऐ अल्लाह, फिर अल्लाह उनको तूने तौबा की तौफीक दी, फिर वापस तूने अता किया, फिर रूमी बादशाह ने वापस लूटा और लूट करके चला गया। ए मेरे परवरदिगार, मेहदी का इंतजार है, तेरे नबी की खबर है। रूमी बादशाह ने कनीसतुल ज़हब में 1,20,000 जहाजों में आने वाला सोना चांदी हीरे जवाहिरात सुलेमान के लूट लिए हैं। इमाम मेहदी की सूरत में अल्लाह तो वापस ले आने वाला है और बैतुल मुकद्दस में जमा करने वाला है। अल्लाह, अब हिंदुस्तान को मेहदी की जरूरत है, अब दुनिया को मेहदी की जरूरत है। ऐ मेरे परवरदिगार, अब जुल्म छोड़ चुका है, ये फुग्गा फूटने वाला है। अल्लाह, ये जुल्म अब तराने पड़ चुके हैं, उसमें हमें सब्र अता फरमा, हमें हिम्मत अता फरमा, हमें गमखारी नसीब फरमा, हमें जज्बात को सही जिहत के अंदर फेर दे। ऐ अल्लाह, गलत जिहत में ले जाने से हिफाजत फरमा। हमारा जवान हमारी जिंदगी का सरमाया है, हमारे जवान हमारी जिंदगी की पूंजी है, इनसे हमें उम्मीदें वाबस्ता है, ये हमारा कल का मुस्तकबल है। अगर हमारा जवान बहक गया, हमारा मुस्तकबल खतरे में पड़ जाएगा, हमारी पूंजी जाया हो जाएगी। हमारे रब, अपनी जिम्मेदारी का एहसास नसीब फरमा। हमारे बहुत बड़ी तबका पुलिस लाइन में गया, इम्तिहान दिया, 100% कामयाबी हम देखना चाहते हैं, अता फरमा। कितने बच्चे कल्बी मेडिकल में गए, हॉस्टलों में एडमिशन लिए, अल्लाह अपने अपने मकसद में इन्हें कामयाब फरमा। यह वक्त का अहम तरीन तकाजा है, यह वक्त का अहम तरीन चैलेंज है। अल्लाह, हमारी नस्लें जब दीन के लिए भी वक़फ़ है, असरी तालीम के लिए भी हमारी नस्लें वक़फ़ हो और वो दीन के माहौल में रहकर इस्लाम और मुसलमानों की और मुल्क की खिदमत करे, ऐसी शक्लें पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, बेकसूर जेलों की सलाखों में हजारों नहीं लाखों की तादाद में है। ऐ अल्लाह, खुसूसन मौलाना कलीम सिद्दीकी, जो एक अंजुमन था, जो एक बहुत बड़ी मुल्क के एतबार से नहीं आलमी सतह से इस्लाम की इशाअत कर रहा था, बूढ़ा भी है, कमजोर भी है, बीमार भी है, एक एक नाड़ी का बल सफेद हो गया। अल्लाह, ये और जेल खाने की नहीं का मेरा रब। ऐ मेरा अल्लाह, जालिम ताकतें क्या कर रही है, फिर भी हमारा जवान नशे में है, उसे कुछ पता नहीं है। इतनी बड़ी शख्सियत जो आलमगीर पैमाने में मुसल्लम थी, आज वो जेलों की सलाखों में डाल दिया गया है। उसका कर्राना, उसका रात का रोना और उसका तिलमिलाना, ऐ मेरे परवरदिगार, ये गरम आंसू यहाँ बह रहे हैं। न वो हमारा रिश्तेदार है, न हमारा वो कराबतदार है, लेकिन सबसे बड़ी कराबत तेरी इज्जत की कसम ईमान की हमारी है और ईमानी रिश्ता है। अब इस बूढ़े को और इस तरह के मजलूम निर्दोष कैदियों को जेलों की सलाखों से रहाई नसीब फरमा। नाजायज मुकदमात में गिरफ्तारों को बाइज्जत बराअत नसीब फरमा। कितने पहाड़ थे, कितने आसमान थे जिनको कोरोना ने जमीन खा गई। मेरे परवरदिगार, वो हमारी मस्जिदों में रहते थे, वो हमारे मामूलात में शरीक रहते थे, अल्लाह गोरे गोरिस्तान के हवाले हो गए। वो सागिद माल की औलाद उजड़ गई, वो इज्जतों जिनकी थी वो खानदान पामाल हो गए। अल्लाह, फलने फूलने की कोई शक्लें अब नहीं रही। ये उतार चढ़ाव इन आंखों ने देखा,
ہم کوئی ٹھیکہ نہیں لے کر آئے ہیں میرے رب، کل کو یہ معاملہ ہمارے ساتھ بھی تو کر سکتا ہے۔ اے ہمارے رحم دل اللہ، اے رحم الراحمین مولا، اس ملک کا کفر، اس ملک کا شرک، اس ملک کا نفاق، اس ملک کی بدماشی اے اللہ اب چڑھ چکی ہے، یہ فگا یا تو پھوڑ دے یا تو اس فگے کو تو پامال کر دے۔ اے رحم الراحمین، تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے۔ او مشکل کشا، او حاجت روا، او فریاد رس، تیرے نبی نے فرمایا ہے دن میں روزے دار کی ایک قبول ہوتی ہے، رات میں ایک قبول ہوتی ہے۔ مولا آج تو جمعہ کا دن ہے، مسلمان تیرے گھر میں جمع ہے، روزے کی حالت میں ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے، آج تو یہ گھڑی ہماری فیور میں کر دے۔ اللہ تو کب تک واپس کرے گا؟ اے ہمارا پروردگار، کیا تو ارحم الراحمین نہیں ہے؟ آج تو یہ گھڑی ہمارے حق میں کر دے، ہمارے جوانوں کے لیے روزیاں دے دے، ہمارے کھیتوں میں برکت دے دے، ہمارے پھلوں میں برکت دے دے، ہماری جانوں اور مالوں میں برکت دے دے۔ اللہ ہماری بہو بہتیوں کی عزت اور عفت کی حفاظت فرما لے۔ تیرا قرآن کہتا ہے کہ رات کے وقت شیطانی طاقتیں زور میں آتی ہے، اور رات کے وقت جتنے بھی شریر طاقتیں ہوتی ہے ان کا راج ہوتا ہے۔ اے اللہ کالی کالی رات میں، اے اللہ سفید سفید عزت اگر لوٹ جائے گی تو یہ تو کالی رات کالے کاموں کے لیے ہے۔ کالی رات میں لوگ کالے کام کرتے ہیں جس میں وساوس انسانی اور شیطانی بہت زور میں ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی عزت اور عفت بہت پیاری ہے۔ اے اللہ یہ نورانی چہرے اور یہ نورانی لباس تاریک راتوں کی نظر نہ ہو جائے، اپنے عزت اور عفت کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں صحت شفا عطا فرما۔ ایک 8 سال کا 8 مہینے کا بچہ ہے، 8 مہینے کا بچہ، پیٹ میں 1 کلو سے اوپر کی اے اللہ کینسر کی گاٹھ، اے میرے پروردگار یہ بچہ اس کے دادا کے لیے کھلونا ہے، یہ بچہ اس کے نانے کا کھلونا ہے، اس کے ماں باپ کی محبت کی عام جگہ ہے، جو چوبا جاتا ہے، جو چاٹا جاتا ہے، جسے پیار کیا جاتا ہے، آدمی جس سے اپنا تھکن دور کرتا ہے۔ 8-9 مہینے کا بچہ، میرے پروردگار کینسر کتنے تیزی سے پھیلا ہے، جوان بھی بوڑھے بھی، عورتیں بھی مرد بھی، اور 9 مہینے کا بچہ، اس کی کوئی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے؟ میرے پروردگار اللہ ایسی آزمائی سے تو بچا لے میرا رب، میرا رب ان ماں باپ پر کیا گزرتی ہوگی جن کو تو نے وہ لال دیا ہے۔ اس بستی میں وہ بھی ہے جو 38 سال سے اپنی معذور اولاد کو وہ ماں چمچی سے کھلا رہی ہے اور اس کا پیسہ پکا نساج کرتی ہے۔ اس بیٹی کی عمر 38 سال ہو گئی ہے میرے رب، او ضعفا کے اللہ، او کمزوروں کے رب، تجھے کس کس کا وسیلہ پیش کرے، تجھے کس کس کا وسیلہ پیش کرے؟ یہ روزے کی حالت میں کوئی کام تو نہیں ہے، یہ رمضانی فقیر ہے اور رمضانی فقیر کو بھیک تو دے دے میرا رب۔ کہ تیرے نبی نے نہیں فرمایا کہ رمضانی بھکاری محروم نہیں رہتا ہے؟ یہ تو تیرے نبی کا فرمان ہے۔ یہ رمضانی بھکاری کی لاج رکھ لے، اس ملک میں امن و آشتی عطا فرما دے، محبت عطا فرما دے، خصوصاً روزی تو دے ہی دے۔ میرے پروردگار روزگار کی ساری شکلیں پھر سے بحال فرما دے۔ ہم توبہ کرتے ہیں، معافی چاہ لیتے ہیں، اے اللہ پھر سے روزگاری کی شکلیں پیدا فرما دے، مہنگائی کو ختم کر دے، ہمارے گھروں میں اولادوں میں مال و متاع میں سکون نصیب فرما۔ مانگی ہوئی دعائیں اپنے فضل پیارے آقا کے حسنات کے صدقے میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وبارک وسلم برحمتک۔